Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. This is a Zoom webinar platform, so it's a bit different from your Zoom meetings. यहाँ पे आप लोग अपने आप को देख नहीं पाएंगे. You will not be able to see your video, nor you can talk. You can only send us questions through chat. So we have prepared a very detailed questionnaire. Our faculty panel, they are extremely experienced in coaching engineering students. Many IITians have come out of their hands over the years. You know Akash's heritage. Apart from that, you also send us a lot of questions during your registration, the registration form. So all that questions have been compiled into a very exhaustive questionnaire. So I'm sure that you will be getting answers to all the queries which are relevant to you at this point of time. अभी आप लोग क्लास 11 में है, फर्स्ट स्टेप कोर्स कर रहे हैं, आप 2 साल के लिए एडमिशन लिए हैं आकाश इंस्टीट्यूट में. You are all class 11 students who are planning to pursue engineering from a very reputed college like an IIT or NIT. And students here are from all across West Bengal. They are from all the centers. So I welcome you all. And one more request to the students. You please don't shoot questions straight away. I hope I am audible. PK sir, Aristi sir? Yes, sir. Yes, sir. Very much. Fine. Thank you, sir. So basically, I will request students, please do not throw questions at us straight away. Please concentrate on the session. There's a logical sequence of all the questions, so we'll come one by one. We'll cover every aspect of your preparation, right from your how to study the books, how to prepare the self-study, classes, exams, results, doubt clearing, everything will be covered, your specific subject-related issues. So we have everything in our mind. So if my audio is not audible, I will show me, please check your own device, because I am pretty well audible as I hear. So please check that. And so please keep your questions for at least for the first 45 minutes to 1 hour. Our session should be over by 1 hour to 1 hour 15 minutes. At the max, it will stretch to 90 minutes. So if you find your questions are not being answered by first 1 hour, then you can send it to us. Otherwise, questions keep popping up. We cannot respond to that. That is the point. Another thing to tell you, please do not send administrative questions to us because this is not the right forum. Anything to do with your iTutor login or study material or any batch specific or your course specific issues, email ID, phone number, that you can contact your center. You know the contact details. We'll share in the end. Here, this forum, you should ask your very academic kind of doubts to the senior faculties, HODs, and academic heads who are with us today. That will be more beneficial. And keep noting the points. So it's already 7:33. I will not take more time. So wish you all a very good evening again. First of all, let me tell you the theme. You all know that. Excellence in JEE, the critical success factors. So all of you are studying at Akash, you are attending the classes, you are taking the lessons in physics, chemistry, maths, you are understanding the various ways of answering the exam. But there are a lot of strategies, lot of tactics, lot of game planning which goes on, which also you should be aware. I am sure faculties are sharing it. JEE is a very, very competitive exam, and everyone wants to get into IIT, get a good branch and a good college and pursue a very wide career. So I will just introduce you to the August faculty panel which we have with us today. First of all, Mr. Prashant Kumar sir, our head of the Department of Chemistry and senior faculty. PK sir, welcome to the session. Good evening, sir. Good evening, students and parents if they are present. Thank you so much, sir. We also have with us Mr. Priyesh Kashyap sir, our academic head and senior faculty of maths. PRK sir, welcome to the Hello, session. everyone. Welcome, sir. And I come to Mr. Radheshyam Thakur sir, our academic head and senior faculty of physics. Aristi sir, welcome to the session. Good evening. Good evening, sir. Good evening, students. Welcome, everyone. Welcome, sir. So, Aristi sir, I will start the first question with you, which is the current main burning issue now. Because of COVID-19 pandemic, which has gripped the entire world, students are in a very, very peculiar situation, which has never been seen before. In their past, long time, we haven't seen such a situation where everyone is under lockdown.
they cannot go to school, they cannot come to Akash, they cannot meet their friends. So a bit of frustration, a bit of demotivation, monotony is hitting them. ये एक प्रॉब्लम हो रहा है. और उसके साथ साथ जो और हो रहा है, जैसे इस साल का जो जेई मेन का पहला राउंड हो गया था, बट सेकेंड राउंड हो नहीं पाया, जेई एडवांस नहीं हो पाया, तो 2 बार एक्चुअली पोस्टपोन हो चुके हैं. बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सिलेबस का चेंजेस हुआ. स्टूडेंट्स आर लिविंग इन अ वेरी वेरी अनसर्टेन सिचुएशन. ये क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा जेई कैसे होगा इन 2 साल बाद, या सिलेबस चेंज होगा और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और अभी हम लोगों का जो पढ़ाई चल रहा है वो कैसे करेंगे, लूजिंग फोकस, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. तो आई थिंक सर वी शुड गाइड द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू कीप ऑन मेंटेनिंग देयर फोकस इन दिस अनसर्टेन सिचुएशन, एंड what will be your advice to them? Over to you, Mr. Singh. Oh, thank you, sir. First of all, this COVID-19 situation, I will say that there are some positive things for these students also. आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो जिसमें प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम होना है, दे आर इन लॉट ऑफ प्रेशर. देन योर सीनियर and you are after 2 years, so you will have a little effect of this I think this COVID situation there, and I will suggest that आप लोगों का कोई ऐसा इसमें प्रेशर नहीं है, तो आप लोग ऐसा करिए, इस पे ध्यान ज़्यादा मत दीजिए. Don't see the news channels, how much that numbers are growing and or it is decreasing. Do our work, and करने का काम है हम लोगों का, तो उसमें कंसंट्रेट करें. Then in this lockdown situation, you cannot go outside frequently since we have to take the precautions. So different entertainment पे sometimes कोई students का होता है म्यूजिक सुन लिया, कुछ ऐसा कर लिया, तो रिलैक्स करने के लिए ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को. और आप लोगों का कोई ऐसा इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा. जो कोविड सिचुएशन है, from that you are not affected at all. I think a little bit effect is there, but not much effect on your batch especially. Then JEE syllabus part, the syllabus is most probably according to me is not going to change, even if for the board it has changed a little bit, but not for you. And even if that will change, we have to prepare according to the syllabus it is right now. So अभी जो हम लोग का syllabus है, उसके लिए उस तरह से हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए. कोई नया सिलेबस आएगा या हटेगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं है. अभी उसमें क्या है प्रिपरेशन का, जैसे सेफ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है क्वेरीज कि कितना नंबर सफिशिएंट होगा, हाउ मच मार्क्स इज सफिशिएंट इन दिस. तो आई विल सजेस्ट वी डोंट गो ओवर दैट marks. It is a very early stage. But even then, I will say you IIT क्या fix करता है? IIT 10% they fix for each subject. IIT में advance में हर subject के लिए individual ये होता है, cut off होता है. जैसे 10% for physics, अगर उससे कम में आया, even if you are getting 60% mark, you won't be selected. तो different subject में 10% करके minimum cut off है. 35% they cut off they put for the overall thing, right? So if you are getting somewhere like 40-45% or 50%, you are a very secure situation that way. But मैं बोलूँगा कि इस पे आप ध्यान मत दीजिए. You try to learn your subject better, and if you learn your subject better, then you will get अगर आप उसमें सब्जेक्ट को अच्छा सीखते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें आएगा, ऑटोमेटिकली मार्क्स विल फॉलो. इट इज अ सेकेंडरी थिंग दैट फॉलोज. सो अगर आप उस तरह से जाते हैं, तो आपका ये मार्क्स होगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा. इसमें कोई बड़ा बात नहीं है. इट इज अ वेरी अर्ली स्टेज टू वरी मोर अबाउट द मार्क्स. हम लोग का कंसंट्रेशन सब्जेक्ट सीखने पे ज़्यादा होना चाहिए. सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा होगा, आप अगर सीखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसमें बेसिक्स पढ़ेंगे, उसका डेफिनेटली मार्क्स तो आएगा ही आएगा. ठीक है. अभी आकाश का हम लोग का यहाँ पे जो एक 10th से जब हम लोग आते हैं, तो उसके बाद बहुत बड़ा जंप होता है. बट अभी आप लोगों का जो ये सिचुएशन होगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा सा इसमें ट्राई कर रहे हैं कि
जो 10th का सिलेबस होता है, 11th का सिलेबस होता है, 12th का सिलेबस होगा, obviously it is far more tough than the 10th syllabus. So, or even for the competitive examination, if we are preparing, that will be tough. So we all know these facts and we have accepted those pressures, and that's why we have come here to, you all are good students, you have taken science. So हम लोग उस प्रेशर को समझते हैं कि what is our responsibility to give and perform there in that situation. So जो आपका सिलेबस टफ का बात है वो तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, और ये एक स्पेशल अच्छा बात है कि particularly I am teacher of physics, so you will see that अभी थोड़ा सा टफ होगा, होते होते मैक्सिमम पे जाएगा, then it will decrease. So ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टेंटली कोई भी सब्जेक्ट में प्रेशर हमेशा बना रहेगा आपका. So आपको सभी सब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम, अगर कभी एक सब्जेक्ट टफ हो रहा है दूसरा सब्जेक्ट इजी होगा, तो इसलिए सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, अपना रूटीन्स बनाइए, उसको फॉलो करिए. अगर रूटीन्स हम लोग फॉलो कर ले गए, आप रूटीन बनाया, मान लीजिए एक बार, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने रूटीन बनाया बट उसको 100% फॉलो नहीं कर पाए, बट इवन इफ वी आर फॉलोइंग लेट्स से 70%, 80% ऑफ that is our success, right? And we have to stretch ourselves sometimes. Let's say that we have not completed till the routine जो भी आज हम लोगों ने बनाया था उसको नहीं कंप्लीट कर पाया, बट उस पार्ट को आप क्या करिए कि अगले दिन ट्राई करिए कि थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने आप को ट्राई टू कंप्लीट दोस पार्ट्स. और पढ़ने का बात तो है कि कभी कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने घंटे पढ़ने हैं और किस टाइम पे पढ़ने हैं. These things I don't think much matter much a lot. स्टूडेंट्स का मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट वे होता है इसको टैकल करने का. अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि दे फिक्स दैट पार्ट कि मुझे ये पार्ट खत्म करना है, अभी इसमें मुझे 3 घंटे लगे, 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, आई विल फिनिश दैट एंड देन आफ्टर आई विल डू समथिंग एल्स. तो दैट इज द वन थिंग. कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि रेगुलरली हाँ, अभी कोई पूछ रहे हैं मुझसे सोना कितने घंटे चाहिए, भाई ये सभी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. किसी का बॉडी एडजस्ट करता है 6 आवर्स से, किसी का बॉडी एडजस्ट करता है 8 आवर्स. अगर मान लीजिए किसी को 8 आवर्स सोने का आदत है और इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो आफ्टर लाइक 6 आवर, देन उसका बॉडी क्लॉक बिगड़ जाएगा. तो ऐसा मत करिए, जितना आप सोते हैं अभी का टाइम वो नहीं आया है कि आपको सोने से एडजस्ट करना है. बाकी चीजें जो हम लोग करते हैं उससे एडजस्ट करने का ट्राई करना चाहिए. जैसे मान लीजिए हम लोगों का अभी तो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मोबाइल भी हम लोगों के हाथ में है, तो वहाँ पे कितना टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता, तो उसमें से काट सकते हैं. सोने को काटने की जरूरत नहीं है. हम लोगों को हेल्दी रहना है और इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्थ पे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए. और पढ़ने का जो बात है, दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए. आई विल सजेस्ट कि जब भी आपका हेल्थ केवल ना बिगड़े, लेकिन जब भी आपका आदत है उस हिसाब से, जैसे अभी किसी का आदत है कि दिन में पढ़ सकता है, कोई 12 बजे तक पढ़ सकता है, आई विल सजेस्ट कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. अगर उतने में स्ट्रिक्ट करिए, बट कभी समटाइम्स इफ यू हैव इफ टाइम परमिट्स एंड अगर आपका सिलेबस उस हिसाब से है तो यू कैन समटाइम्स स्ट्रेच, नो प्रॉब्लम. सो थैंक यू. Thank you so much, Aristi sir. That was very nice advice to start with, and I will quickly summarize the points sir said. Very rightly, first of all, students, your JEE is in 2022. तब तक तो वैक्सीन बहुत पहले आ जाएगा. लेट्स बी पॉजिटिव. दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है, विल गेट इम्यून. आपका शेड्यूल में कुछ नहीं दिखने का, तो कोविड के बारे में सोच के आज का आपका प्रेजेंट का डे खराब ना करें. ये टाइम बहुत कीमती है. IIT इज़ अ लॉन्ग जर्नी, सो यू हैव टू रियली यूज बेस्ट ऑफ योर टाइम. दैट्स व्हाट सर सेड. सेकेंड थिंग इज, अगर आप लोग अब बाहर नहीं जा रहे हो तो आप लोग को टाइम ज़्यादा मिल रहा है, फैटिग नहीं हो रहा है ट्रैवलिंग का, इसको पॉजिटिव भी नहीं. प्लीज टेक द पॉजिटिव अप्रोच टू योर प्रिपरेशन. However, if monotony is getting you, please don't become a robot and only study and study. You have to balance your study with your daily life. थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज फिटनेस के लिए अच्छा होता है. हम सबका फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गया, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ. और सोने के बारे में सर बोले, तो इसके बारे में मैं एक्चुअली ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो 6 आवर्स या 8 आवर्स जो भी आपका बॉडी चाहता है वो एट अ स्ट्रेट सोए. ये बीच बीच में दोपहर में सुबह 1 घंटा 2 घंटा, इससे बहुत आदत बिगड़ता है. और पढ़ाई करते वक्त चेयर टेबल बैठ के फिटनेस से बहुत पढ़े. अभी कोई पूछ रहा है तो रात में पढ़ना चाहिए कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. हम तो बोलेंगे अपने एक्सपीरियंस है कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ा करो, लेकिन आज का जनरेशन रात में पढ़ते हैं. बट रूटीन के बाद सर को अच्छे से बोले कि रूटीन एक होना चाहिए.
और वो रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, इरेटिक नहीं होना। कभी कभी आप अगर थोड़ा स्ट्रेच करो तो अच्छा रहेगा, सिलेबस के हिसाब से, प्लान के हिसाब से वो आप करते रहो। सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बोले, एवरी सब्जेक्ट हैज अ कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ, यू नो ऑल दिस। जेई का पैटर्न आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना परफेक्शन एग्जाम, ये एलिमिनेशन एग्जाम, ये सीबीएसई या आईएससी से पूरा अलग होगा। यहाँ पे 4-5 नंबर का फर्क, बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा आपको, मार्क्स में और रैंकिंग में बहुत फर्क आ जाएगा, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करके वो परफेक्शन भी लाना होगा। So this was our good thing to start with. So thank you, Aristi sir. I will now come to Prashant Kumar sir. Yes. ठीक है सर, रूटीन की बात हम कर रहे थे अभी, तो मैं आपसे थोड़ा गाइडेंस चाहूँगा फॉर स्टूडेंट्स अबाउट देयर सेल्फ स्टडी रूटीन। तो आकाश का रूटीन तो है, इनका स्कूल का भी रूटीन है, ये गिवन दोनों टेस्ट करना, बट इनका जो सेल्फ स्टडी है वो रूटीन कैसा होना चाहिए? जैसे अभी बच्चे पूछ रहे थे कब पढ़ना चाहिए, रात को या दिन को। देन सेकेंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू सर इज दैट हाउ डू दे कंबाइन देयर सब्जेक्ट्स? उनका तो स्कूल में और भी सब्जेक्ट्स होंगे, हाउ डू दे बैलेंस दैट आउट? these students are in class 11, तो अभी तो बहुत टाइम है इनके पास, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जेई मेन का और जेई एडवांस का पढ़ाई कैसे बैलेंस किया जाए 11 और 12 में, अगर थोड़ा अर्ली आप थोड़ा डायरेक्शन दे देंगे। और एक क्वेश्चन अभी आ रहा था फ्रॉम अ स्टूडेंट अबाउट ओलंपियाड्स, तो कैसे करें? तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ डू दे मेक देयर प्रिपरेशन प्लान एंड रूटीन? इफ यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स टाइम। Yes, sir. Sure, sir. Thank you, sir. I will be happy to explain these points to the students. Actually, सर ने जो बात किया कि रिगार्डिंग द शेड्यूल, तो सबसे पहले मैं बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूँगा कि हाउ यू कैन डू द प्रिपरेशन। तो जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो मुझे एक बात का ख्याल रखना होता था कि मैंने एक शेड्यूल बनाया था कि मुझे इतने से इतने टाइम स्कूल जाना है, इतने से इतने टाइम मुझे कोचिंग करना है और इतने से इतने टाइम मुझे सेल्फ स्टडी करना है। और ये शेड्यूल को आपको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन कि हमारे घर में अगर फेस्टिवल होता था या किसी की शादी होती थी तो भी मैं अपना शेड्यूल कभी भी चेंज नहीं करता था। मेरे लिए बस एक ही चीज़ था कि मेरा फेस्टिवल या मेरा शादी या जो भी है वो तभी होगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। अगर हमारा रिजल्ट अगर आ गया तो उस दिन मेरा फेस्टिवल होगा और दुनिया सेलिब्रेट करेगी मेरे साथ। दिस वाज माय कंसेप्ट। इसलिए मेरा भी आप लोगों से यही कहना है बच्चों कि आपके पास ये जो 2 इयर्स है ये बहुत ही क्रूशियल है, और ये जो 2 इयर्स है ये आपका इंटायर लाइफ को डिसाइड करेगा कि आप किस पाथ पे जाओगे। इसलिए अभी आपके लिए कोई भी फेस्टिवल या किसी की भी शादी या कुछ भी वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करोगे तो फेस्टिवल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप भैया की शादी में नहीं गए तो भैया की शादी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं। इसलिए अभी आपको अपने फ्यूचर पे आपको फोकस करना है। कल के डेट में अगर सपोज आप जो है एंजॉय करें, बहुत सारा फेस्टिवल किए, इधर उधर गए, घूमे फिरे, सब कुछ किए, सबको खुश रखें, बट एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स अगर आपका अगर रिजल्ट अगर नहीं आता है तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम फेस्टिवल मना रहा था, तुम घूम रहा था, तुम एंजॉय कर रहा था। सब यही कहेंगे तुमने पढ़ाई नहीं की। इसलिए अल्टीमेटली आपका फ्यूचर आपके पास है, आपको डिसाइड करना है कि उसके लिए क्या करना है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो 2 इयर्स है ये कम्प्लीटली आपको डिवोट करना है अपने स्टडी में, और आप जो है शेड्यूल एक बना लें कि उस शेड्यूल को कैसे आपको फॉलो करना है। अब सबका स्कूल टाइम अलग अलग है, आकाश का टाइम सबको पता ही है, सेल्फ स्टडी का टाइम सबको पता ही है। और एक चीज़ हमेशा रखना है कि जितना आप पढ़ रहे हो कोचिंग में या स्कूल में, उतना ही टाइम, उससे ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ स्टडी में देना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप कुछ नहीं सीख सकते। हम आपको आके पढ़ाएं 4 घंटा, सर आके 4 घंटा पढ़ाएं, वो आके 5 घंटा आपको पढ़ाएं, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई भी आप सेल्फ स्टडी ना करें। इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ अ मैंडेटरी पार्ट। दूसरी बात मैं बच्चों से कहना चाहूँगा अदर सब्जेक्ट के बारे में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये आकाश में आपको पढ़ाया जाता है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं और हम लोग करते भी हैं कि वी ऑलवेज डील विद द बेसिक्स एज वेल एज ऑफ द अपर लेवल, कि हम लोग बेसिक्स भी पढ़ाते हैं जो कि आपको बोर्ड के लेवल में हेल्प करेगा, और साथ में जो आपका मेंस और एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी कराते हैं, और वो पैकेज में भी दिया हुआ है। इसलिए आपको अलग से कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। दैट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि देयर इज नो नीड टू टेक एनी एक्स्ट्रा ट्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अगर आप एक्स्ट्रा ट्यूशन अगर ले रहे हो तो उसका लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक है विच आई वुड लाइक टू टेल यू। पहला ड्रॉबैक कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम किल हो रहा है। इफ यू आर टेकिंग द
ट्यूशंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा कि आपको एक ही सब्जेक्ट चार टीचर चार तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कभी भी आप उसको गेन नहीं कर पाओगे, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। पीके सर ने एक्स कंसेप्ट से पढ़ाया, एक्स वाई सर ने जेड कंसेप्ट से पढ़ाया, किसी और ने पी कंसेप्ट से पढ़ाया, तो क्या होगा, वो पूरा हौच पौच खिचड़ी हो जाएगा। तो इन दैट केस आप किसी एक टीचर का कंसेप्ट या तरीका आप फॉलो नहीं कर पाओगे, तो इन दैट केस वो आपको लॉस करेगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का ट्यूशन ना करें। हाँ, अगर आपको इंग्लिश का या कंप्यूटर्स का अगर ट्यूशन करना है तो वीक में 1 या 2 दिन करें, और मैक्सिमम आप फोकस करें अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर। और ये जरूर हम कहेंगे कि आप लोग एक अपना शेड्यूल बना लें। आप सभी लोग जानते होंगे रिगार्डिंग द सीमंती, तो सीमंती जो है जेई मीन्स की इस साल की जो है गर्ल्स टॉपर थी वेस्ट बंगाल की, और मतलब पूरे वेस्ट बंगाल की इनफैक्ट वो टॉपर थी, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल उसका था। जब मैं उसके घर गया तो मैंने उसके घर पे देखा कि उसने जो है अपना डेली का शेड्यूल बना करके अपने डोर के ऊपर चिपका रखा है, और वो शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फेस्टिवल आ जाए, चाहे मम्मी बीमार हो जाए, चाहे खाना नहीं बने, कुछ भी हो, उसको उस शेड्यूल को फॉलो करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी सिंगल मिनट फॉर द 2 years। आपको कभी भी ये 2 साल में एक सिंगल मिनट भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कंप्लीट टाइम यूटिलाइजेशन करना है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये कितने घंटे पढ़ना, 5 घंटा कोई पढ़ सकता है, कोई 6 घंटा पढ़ सकता है, कोई 7 घंटा पढ़ सकता है, सबका पढ़ने का कैपेसिटी अलग अलग है, और सबका जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग गेन होता है। इसलिए कितना घंटा पढ़ सकते हैं इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं मतलब आपको टाइम बिना वेस्ट किए आपको पढ़ना है। जैसे मैं जब अपने समय में प्रिपरेशन करता था तो ईच एंड सिंगल टाइम आई यूज फॉर माई स्टडीज। अगर मैं ब्रश कर रहा हूँ तो उस समय मैं प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो उस समय मैं प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए मैं कभी भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। इसलिए मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी एक सिंगल मिनट भी 2 years के लिए वेस्ट ना करें। अगर ये 2 साल आपने निकाल लिया तो इंटायर लाइफ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल गेट अ डायरेक्शन। इसलिए आप शेड्यूल बना लें, जैसे भी आपको बनाना है बना लें, टीचर का हेल्प लेके बना लें, लेकिन उसको स्टिक करें। और सर आपका एक क्वेश्चन क्या था सर? तो वही मतलब ओलंपियाड्स को लेके बच्चे ओलंपियाड्स के बारे में ये कहना है कि देखिए ओलंपियाड्स का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा अलग लेवल का होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आवर जे एडवांस है। तो जे एडवांस का प्रिपरेशन अलग है, इसका प्रिपरेशन अलग है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। क्योंकि अगर आप ओलंपियाड्स का अगर आप पेपर देखेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर है, और आपका जो जे एडवांस का पेपर है वो कम्प्लीटली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसका पैटर्न भी अलग है। उसमें सिंगल ऑप्शंस हैं, मोर देन वन ऑप्शंस हैं, आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आपका जो है मैट्रिक्स मैच टाइप है, तो इस तरह का पैटर्न मिलेगा। लेकिन आपका जो ओलंपियाड है वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। और दूसरी बात है कि उसमें आपको काफ़ी इनडेप्थ नॉलेज चाहिए। जे एडवांस के लिए भी आपको इनडेप्थ चाहिए, लेकिन ओलंपियाड क्या है, इनडेप्थ के अंदर भी इनडेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको फिर और ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा। और ओलंपियाड अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली बात है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम तीनों ओलंपियाड को निकाल दें। तो आइदर यू हैव टू चूज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, डिपेंड करता है आप कौन सा ओलंपियाड में जाना चाहते हैं। लेकिन उसका जो प्रिपरेशन है उसका इंटायरली डिफरेंट लाइन है। इसलिए अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सजेशन है कि दोनों काम एक साथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप बेटर है कि जे एडवांस को फोकस करें और साइड में आप जो है थोड़ा बहुत समय निकाल करके ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन करें। ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आपको आकाश से भी हेल्प मिलेगा। और साथ में क्या है, ओलंपियाड्स का जो जितना भी लास्ट ईयर का पेपर है वो सब वेबसाइट पे प्रेजेंट है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और टीचर्स का हेल्प लीजिए। लेकिन प्राइमरी गोल है आपका एडवांस, क्योंकि जे एडवांस डायरेक्टली आपका जो है 11th और 12th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। यस, और क्या क्वेश्चन सर आपका? थैंक यू सो मच सर। देयर आर सम क्वेश्चंस कमिंग ऑन चैट। केमिस्ट्री का तो हम बाद में आएंगे सर। तो अगर आप कुछ बोलना चाहें, आईआईएससी का कोई पूछ रहा है। आईआईएससी तो लिखता है, ठीक है सर, वी कैन कवर दिस। These are common questions. Anyway, so thank you PK sir. So students, I'll quickly summarize what PK sir has given the advice. First of all, we told you to make a routine and be very honest and sincere about the routine. वो एग्जाम्पल दिए कि कुछ भी फेस्टिवल हो, कुछ भी सेरेमनी हो, आप थोड़ा ये 2 साल ये सब सेक्रीफाइस करो। ये चीज़ हम लोग
सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट को भी बार बार बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ज़िंदगी भर के लिए सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो, पर अगर आपने IIT बनाने का मन कर लिया तो ये 2 साल आपको सारे डाइवर्शन छोड़ना होगा। श्रीमंती का एग्जाम्पल सर दिए, वेस्ट बंगाल टॉपर एंड ऑल इंडिया में टॉप में आए हैं वो, तो ऐसे रूटीन में फॉलो करके हमेशा अपने दिमाग में चिपकाते रहती है। सो दिस थिंग वी लर्न। अभी 2 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैं फैटिग हो जाता हूँ स्कूल और आकाश करके। पहले एक चीज़ सोच के देखिए, डू यू वांट टू गो टू IIT एंड डू यू वांट टू गो बैडली? डू यू लव योर सब्जेक्ट? डू यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर एंड अ सक्सेसफुल इंजीनियर? मैं फ्रैंकली एक चीज़ सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, इंडिया में इंजीनियर बनना कोई बात नहीं है, बहुत कॉमन हो चुका है। देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस getting a BTech from there, and you can go and then you not get a good job, you go for MBA and the career will be different direction. अगर आप लोग आकाश में एडमिशन लिया तो आपको तो या तो IIT में जाना है या टॉप NIT में जाना है, दैट इज़ द मेन टारगेट। सो अगर आप एक्चुअली अपने सब्जेक्ट को लव करते हो, भले आप 6 घंटा स्कूल का क्लास करो, 4 घंटा आकाश की क्लास करो, फैटिग नहीं है, तो स्टार्ट लर्निंग एंड लविंग योर सब्जेक्ट। और जो भी रूटीन आप बनाएंगे इधर से उधर दुनिया हो जाए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट डिविएटेड विद दैट। हर दिन आपका आकाश का क्लास नहीं होता, हर दिन आपका स्कूल का भी क्लास नहीं होता। वैसे देख के अपने एपिटाइट वाइज बनाए, मतलब रूटीन। और RST सर और PK सर दोनों एक चीज़ बोले कि देयर इज़ नो मॉडल रूटीन लाइक कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए। आप अपना कैपेसिटी देख के रूटीन बनाए। अगर आप कल से रूटीन बनाएंगे 12 घंटा पढ़ेंगे और आपका आदत नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे अपना वो रूटीन को बढ़ाते जाइए जो आपको बॉडी एडजस्ट करती है। दैट विल बी अ बेटर आइडिया। So many questions are coming. Please do not ask very individual questions. वो फोरम नहीं है। जैसे कोई पूछा मैं 2 घंटा मेरा दो मंथ छूट गया बिकॉज ऑफ कोरोना, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट ठीक है, हम बैकलॉग के बारे में थोड़ा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट प्लीज होल्ड ऑन टू योर वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन। इसके लिए आपका टेलीग्राम ग्रुप्स है, आपके फैकल्टीज है। लेट्स डिस्कस सम जनरल थिंग्स। पूरा वेस्ट बंगाल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आज वी कैन डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच PK सर। नाउ आई कम टू Priyesh Kashyap सर। करके सर आपके लिए जो क्वेश्चन है, हम लोग रूटीन के बाद हेल्थ स्टडी की बात कर रहे थे, तो आपसे मैं 2-3 चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को रेगुलर करना भी है, करना ही चाहिए, और सब लोग करते भी हैं। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर रेगुलर। तो जो क्लास अटेंड नहीं करते उनको तो करना चाहिए, दे आर सिंसियर अबाउट देयर ओन करियर एंड ओन लाइफ। लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो भी कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा 2 महीना छूट गया, ये बैकलॉग कैसे कवर करूँ। यही चीज़ बच्चे बोलते हैं कि आकाश में एक टेस्ट चल रहा है और मैं 2 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ, तो टेस्ट के लिए मैंने क्लास छोड़ के प्रिपेयर कर रहा हूँ, या स्कूल में टेस्ट है तो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे कभी बच्चे सिंसियर और सीरियस होते हुए भी अपने शेड्यूल से बिखर जाते हैं। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो आप लोग भी देखे होंगे, डाउट क्लास में बहुत अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो रहा है, लोग आ नहीं रहे डाउट। तो डाउट क्लास का अटेंडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, और बच्चों को कैसे आना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करके आना चाहिए, नॉर्मल क्लास में कैसे वो मैनेज करें टू बैलेंस विद एंड आकाश स्टडीज, हाउ टू कवर बैकलॉग्स, यही क्वेश्चन सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर इफ यू कैन गाइड अस। ओके सर। ओके, हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्लास जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि आप सोचिए कि हर दिन आप थोड़ा सा पढ़ते हैं और वो एक फिक्स समय में पढ़ते हैं, तो बिट बाय बिट आपको पता नहीं चलता है और वो समय आ जाता है जब हमें एग्जाम देना होता है। और आपका वॉइस एको हो रहा है, आपका वॉइस एको हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर रखिए माइक। ओके ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लासेस कभी भी मिस नहीं करना है अगर आप फोकस्ड हैं तो, क्योंकि ये बातें आपके दिमाग में आएंगे। जैसे कि हम लोग क्लास के नोट्स भी शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी कर देते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आप नोट्स देख लेंगे और जो पढ़ाया गया है आप उसे खुद से समझ लेंगे, बट आप जान लीजिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास में जो भी हम बोलते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक बात, वो आप वहाँ पे नोट्स देख के नहीं समझ पाएंगे। अगर ऐसा होता तो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उससे भी पढ़ के लोग कंप्लीट कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्लास का बहुत बड़ा मतलब रोल है आपके प्रिपरेशन में, और उसे मिस नहीं करना है। हाँ, ऐसा लग सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे फीलिंग्स आए, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको लगेगा ऐसा कि मैं खुद से कर लूंगा, अच्छा ये क्लास ये टॉपिक तो मतलब सिंपल सा है, ये तो हो ही जाएगा, सर जो बताएंगे वो तो मैं देख लूंगा, अरे आज तो सर प्रॉब्लम्स कराएंगे। ये सब बात जो एक्सक्यूज है, क्लासेस छोड़ने का ये सब एक्सक्यूज होगा और आपको पता नहीं चलेगा कब आप पीछे चले जाएंगे। तो
ये जान लीजिए, आपको पता होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत है हिंदी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हर दिन जो हम लोगों का क्लास होता है वो आप धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स कलेक्ट होंगे। अभी जो टाइम है हम लोगों का, जो आप 11th में आप स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, तो अभी आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि जेई का लेवल क्या है। धीरे धीरे आप समझेंगे, आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं इसका। आप सोच लीजिए कंपटीशन का क्या लेवल रहता होगा। तो 12 लाख में से जेई मेंस में, जेई एडवांस के लिए 2 से 2.5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। तो यू जस्ट इमेजिन कि कंपटीशन कितना रहता है और कितना ज्यादा हमें मेहनत करना है उसके लिए। तो बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना है अप्रोच में, हमें एकदम सीरियस रहना है, फोकस्ड रहना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और वो डिस्ट्रैक्शन से आप कब बच पाएंगे? जब आपका फोकस क्लियर रहेगा, जब आपका गोल क्लियर रहेगा कि मुझे आईटी के अलावा और कहीं नहीं जाना है, मुझे आईटी में ही पढ़ना है। और ये बात अगर क्लियर है आपके दिमाग में, वो पिक्चर आप देखिए, आप आईटी के बारे में पता करिए, आईटी में ऐसा क्या है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं है। हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं एक साथ ब्रांड वैल्यू के लिए? वो जान लीजिए। 2 स्टूडेंट सामने खड़ा है, एक आईआईटीएन है और एक नॉन आईआईटीएन है। तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में पूछा जाएगा तो एक आईआईटीएन से पूछा जाएगा, बिकॉज ही इज अ ट्रस्टेड वन। तो ये ब्रांड वैल्यू की बात होती है। लोग एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं, तो आप समझ लीजिए, इससे ही समझ लीजिए। इसके लिए काफी मेहनत करना है। तो क्लासेस किसी भी स्थिति में मिस नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा, सर ने बोला कि डाउट्स, लोग जनरली डाउट्स क्लियरिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में डाउट्स आने चाहिए। जब आप क्लास करते हैं, आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए फैकल्टी से पूछने के लिए। आपको ये लगेगा कि मैं ये क्वेश्चन अगर पूछूंगा तो सबको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कुछ नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। आप सिंपल क्वेश्चंस पूछिएगा, हो सकता है उस सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा हो बट वो बहुत बड़ी बात हो और उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा हो। तो छोटी से छोटी बात भी अगर आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया, आप उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पूछिए क्लास में, एंड फैकल्टी इज बाउंड टू एक्सप्लेन दैट इन द क्लास इटसेल्फ। तो क्लास में ही आप पूछने का कोशिश करिए। जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, आप उसको 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ स्किप कर गए, मुझे नहीं समझ में आया, डाउट क्लियरिंग के लिए एक स्पेशल क्लास रखा गया है आकाश में। ये कहीं नहीं होता है इस तरह से कि डाउट का एक स्पेशल क्लास रखा जाता है। डाउट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। आपको पता होगा डाउट के लिए अलग सेट ऑफ फैकल्टीज होते हैं। यहाँ हम लोग जो लोग पढ़ाते हैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही डाउट्स में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस चीज पे फोकस्ड है। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट्स आए स्टूडेंट्स के लिए। वी आर वर्किंग हार्ड डेफिनेटली एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। हमारे मेहनत से नहीं होगा, आपको काम करना होगा। जब दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे, स्टूडेंट एंड फैकल्टीज, तभी रिजल्ट्स होगा। और रिजल्ट्स होगा तभी आपकी भी बात बनेगी और हम लोगों की बात बनेगी। इसीलिए डाउट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको डाउट्स नहीं भी हो ना, फिर भी आप डाउट क्लास में आ जाइए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डाउट्स बिल्कुल ना हो, आपको लगता हो कि 1 घंटा मेरे मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, आप डाउट क्लास में आ जाओ सिंपली। दूसरा जो डाउट पूछेगा ना, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक स्टूडेंट पूछता है ना, बाकी लोगों का भी उससे दिमाग खुलता है, उससे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, डाउट काफी इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। अगर आपको डाउट नहीं हो रहा है तो आप सोचिए, प्रॉब्लम्स पे सोचिए। सर ने जो पढ़ाया है उससे जाके आप घर में सोचिए कि ये पढ़ाया सर ने, ऐसे बताया, क्या क्यों बताया, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों सॉल्व हुआ, क्या कोई दूसरा अप्रोच रहता होगा इसका? हर एक क्वेश्चन के कई अप्रोच होते हैं, कोई अप्रोच मैं ले रहा हूँ। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स कभी कभी काफी अच्छे अप्रोच सोच लेते हैं, इनफैक्ट फैकल्टी से भी ज्यादा। तो ये इनोवेशन की बात है। हम लोग आपको इनोवेटिव बना रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये कोई रट्टा मार सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, रटना नहीं है। जेई के लिए आप ये बात जान लीजिए, अगर आप मेमोराइज कर रहे हैं कोई भी चीज तो आप गलत कर रहे हैं। मेमोराइज मत करिए, आप क्वेश्चन करिए, आप रीजन करिए ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो आप जेई एडवांस के कोई भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पे आप सोच पाएंगे, और वही इंपॉर्टेंट है। अभी से आप घर में बैठते हैं तो आप टाइम फिक्स करके, जैसे मान लीजिए, देखिए स्ट्रैटेजी क्या होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस
जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बताया मैंने, उस पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने कराया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ कि तुम जाके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से जाके बनाओ, या फिर कोई भी बुक से बनाओ, आकाश के टारगेट से बनाओ। तो तुम जब उस क्वेश्चंस को बनाते हो तो तुम सोचते हो उस पर। मैं यही बोल रहा हूँ, ट्राई टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और ये धीरे धीरे आएगा। ये मत सोचना कि मैंने आज बोला कल तुम्हारे अंदर ये डेवलप हो जाएगा, नहीं, ये टाइम के साथ डेवलप होगा। तुम्हें सब्जेक्ट के साथ जीना होगा, और तभी तुम जेईई एडवांस में अच्छा रैंक ला पाओगे। हमेशा बोला जाता है ऑलवेज एम फॉर द मून, बट इफ यू मिस इट यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। तो टारगेट हमेशा रखना है कि जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। आईआईटी बॉम्बे को टारगेट करिए तो डेफिनेटली आपका जो है आईआईटी में कोई ना कोई मिल जाएगा। Thank you, PRK sir. That was a very motivating lesson, and Thank you, students, I sir. hope you are motivated that if you are aspiring for the moon, even if you miss it, you fall among the stars. ये फायर इन द बेली जॉब बोलते हैं, ये विजन होना चाहिए। तब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तब आपको थकान नहीं आएगा, तब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं एवरेज। कोई बच्चा भी लिख रहा था कि आई एम माई एवरेज स्टूडेंट, अगर पहले ही आपने आपको अपने एवरेज लेवल कर दिया तो आप एवरेज बन ही गए। प्लीज थिंक दैट आई हैव द पोटेंशियल, एवरीवन हैज द पोटेंशियल। IQ सबका होता है, हार्ड वर्क चाहिए। मैं मेहनत करूँगा तो आप पहुँचो। कौन कोटा गया, कौन दिल्ली गया, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप ठीक से मेहनत कर रहे हो, आपका गाइडेंस है, यू आर स्टडीइंग इन आकाश इंस्टीट्यूट, यू गेट ऑल दी सपोर्ट, यू विल डू वेल। क्लास रेगुलर किया करो, और जो सर ने बोले कि अगर आप IIT क्रैक कर लिया तो आपका करियर एकदम डिफरेंट हो जाएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करोगे तो सम्मान होगा। मनी सैलरी की बात तो अलग है, लोग अलग से आपको देखेंगे, तो ये एस्पिरेशन आपको होना चाहिए। और यू शुड लव योर सब्जेक्ट। सो कम टू द क्लास। जो इंट्रोवर्ट है, जो थोड़ा शाई है, उनके बारे में सर एक बहुत अच्छी बात बोले, यू माइट बी इंट्रोवर्ट, यू माइट बी शाई, दैट्स अ पर्सनैलिटी टाइप, लेकिन बी कम्युनिकेटिव फॉर योर लेसन्स। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो बार बार पूछिए, सर ये चीज़ अच्छे से बोले। क्योंकि कोई भी जॉब में आप जाओ, इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट। आप इंजीनियर बनोगे, कोई कंपनी में काम करोगे, कस्टमर्स से, मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन से, अपनी टीम से आपको बहुत बात करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो डाउट क्लास हम रखते हैं। पहले तो जब नॉर्मल टाइम में, ऑफलाइन टाइम में तो डाउट का स्लॉट्स होता था, अभी तो ऑनलाइन में डेडिकेटेड स्लॉट्स है, वहाँ पे डाउट के लिए आए, और डाउट ना भी हो तब भी आए, क्योंकि बाकी बच्चों का डाउट से, जो सर बहुत अच्छे से बोले, क्लियर लर्निंग होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू ऐड 2 मोर थिंग्स ओवर हियर। देखिए, लॉकडाउन टाइम में आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। ये टेलीग्राम ग्रुप तो नॉर्मली नहीं था, अभी तो राउंड द क्लॉक आप डाउट पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सबके सामने क्वेश्चन नहीं है, आप डायरेक्ट फैकल्टी को SMS करें, टेलीग्राम पे मैसेज प्राइवेट पोस्ट पे कर सकते हैं। iTutor में एक आस्क एन एक्सपर्ट ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। iTutor के बाद में एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी आपको बैकलॉग हो जाता है, फैकल्टी का जो पेस है उससे आपका पेस पीछे चलता है। आपके अभी लॉकडाउन टाइम में सारे वीडियोस और सारे ई-बुक्स ओपन कर दिया गया है। पहले जैसे आपको सेंटर में आके iTutor बुकिंग करना पड़ता था, अब घर बैठ के जितना आप कर सकते हैं। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ये बैकलॉग कवर करने में। जो स्टूडेंट बोल रहे हो कि मेरा 2 महीने का छूट गया, सिंपल बात है, आपको तो अभी 2 घंटा पर डे टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर रहे। वाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव? iTutor वीडियोस को देखिए, बट हाँ, एक बैलेंस रखिए, एक साथ 2-3 चैप्टर करते हुए कंफ्यूज मत हो जाए। तो दिस विल बी माई मैसेज टू यू। आई विल स्टे विथ PRK सर। सब्जेक्ट्स में हम आएंगे, ऑलरेडी केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आ गया। मैं बोला था कि हम पे थोड़ा पेशेंस, वी हैव ऑल द सब्जेक्ट क्वेश्चंस। तो अभी हम थोड़ा सब्जेक्ट में जाएंगे। एंड PRK सर को मैं पूछूंगा रिगार्डिंग मैथ्स। सर, अगर मैथ्स को लेकर आप कुछ स्पेसिफिक टिप्स देंगे तो वो थोड़ा बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू मेक गुड स्कोर इन मैथ्स, इज देयर एनी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू फोकस ऑन? आप अगर इस बारे में थोड़ा बताएं तो। यस, अगर हम लोग 11th के सिलेबस की बात करें तो 11th में अगर पूरे जेईई के सिलेबस की पहले बात करें तो देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा मैं मैथ्स के सिलेबस को मैं बोल रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। तो ब्रॉड कैटेगरीज जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। ये मेन 3 पिलर्स हैं जिस पे पूरा मैथ्स बेस्ड है। और सब टॉपिक्स भी हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे 3D हो गए, वेक्टर्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए और ट्रिगोनोमेट्री हो गए, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो मेजर जो 3 पिलर्स हैं वो है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। और 11th में आप जो है अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक्स हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये सारे चैप्टर्स हम लोग 11th में पढ़ते हैं अलजेब्रा का। और कोऑर्डिनेट में क्या क्या है? स्ट्रेट लाइंस,
सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शंस। तो अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोनिक सेक्शंस पे आप फोकस करें, उसका वेटेज जो है कोनिक सेक्शंस का मेंस में भी अच्छा है। मेंस में भी 5 सवाल, 4 से 5 सवाल एकदम रहता है। पहले 30 क्वेश्चंस हुआ करता था, तो 6 से 7 सवाल हुआ कर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहते थे, 6 to 7 क्वेश्चंस। अभी जो है 5 to 6 मान के चलिए, 25 क्वेश्चंस में से 5 सवाल मिनिमम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आना है। उसके बाद अलजेब्रा हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 5 सवाल मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंडर क्या आता है? पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रहेगा, एक सर्कल से रहेगा और एक पैराबोला, एक हाइपरबोला, एक एलिप्स से रहेगा। कभी कभी मिक्स करके पूछता है, जैसे आप पैराबोला और सर्कल मिक्स करके पूछ दिया, एलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को काफी अच्छा कर लेना है। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा में आप देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक से एक सवाल होता है, तो उस पर आपको प्रैक्टिस करना है लगातार अलजेब्रा पोर्शन। जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर किसी का थ्योरी कंप्लीट हो गया है तो उसको कभी मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके थोड़ा उसको प्रैक्टिस में रखना है अलजेब्रा को। कोऑर्डिनेट में रिवीजन चाहिए। जैसे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा हम लोगों को क्या है कि उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट, ये दो टॉपिक पे हम लोग को फोकस करना होगा 11th में, इससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जैसा कि ये तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए स्ट्रेटेजी तो हम लोगों को पता ही है सबको कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं सिंगल करेक्ट होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे टाइम फ्रेम में। जिससे 1 घंटा में आप कभी भी 20 क्वेश्चंस घर पे बैठे हुए हैं तो 1 घंटा फिक्स करके 20 या 25 क्वेश्चन ले लिया, 25 क्वेश्चंस ले लिया और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस से आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे। और ऑलवेज याद रखिए कि जब भी पढ़ रहे हैं मैथ्स का कोई भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप ऑलवेज सोचेंगे हर क्वेश्चन को जल्दी में कैसे सॉल्व करें। तो मेंटल कैलकुलेशन डेवलप करिए, जैसे कम लिखने का कोशिश करिए। जैसे आप A4 शीट सामने रखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बहुत सारी चीज हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े 1 मिनट में सोचता हूँ क्वेश्चन पे कि आखिर क्या है, और क्वेश्चन को जब मैं 1 बार पढ़ता हूँ 2 बार पढ़ता हूँ मैं, उसके ऑप्शंस देखता हूँ, मुझे हिंट मिल जाता है कि क्या करना है। तो क्वेश्चंस को 1 मिनट आप पढ़ने में डालिए, उसको सोचने में डालिए, उसके बाद आपको मान के चलिए कि 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करना है आप लोगों को, और ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत होगा। और उसके लिए क्या है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स सोचना होगा। हम लोग क्लास में बताते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चंस में जल्दी कैसे सोच लिए, ठीक है ना, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो आपको लेंदी अप्रोच लग जाएगा। तो इस पे थोड़ा काम करना है, वो क्लास में हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। तो वो धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे हम लोग क्लास में, एक साथ स्ट्रेटेजी बना के डेवलप कर लेंगे। तो ये जेईई मेंस के लिए हो गया। एडवांस के लिए मैंने पहले बोल दिया आप लोगों को, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए, क्वेश्चंस पे टाइम दीजिए, क्वेश्चंस पे टाइम देके सोचिए। आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, आप थोड़ा उस पर सोचिए, हो सकता है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही बने एडवांस के लिए, तो लेकिन 10 क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगे कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको सोचने का आदत पड़ जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो एडवांस का प्रिपरेशन आपका होता रहेगा। तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को रखना है। और जैसे कुछ लोग जनरली क्वेश्चंस करते हैं कि प्री आरएमओ के लिए क्या करना चाहिए या ओलंपियाड्स के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूं कि ये जो एग्जाम्स है ओलंपियाड्स जो है, प्री आरएमओ, आरएमओ, तो ये जो है सबसे पहले पीके सर ने आपको पहले बता दिया कि इसका जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल अलग है जेईई मेंस और एडवांस से। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, प्री आरएमओ आरएमओ का कायदे से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये इन डेप्थ क्रिटिकल एनालिसिस है। आपको 3 घंटे में 7 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, आरएमओ में 7 से 8 क्वेश्चन। तो आप सोचिए कि हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दिया हुआ। तो ये आपको मैथ्स में इतना ज्यादा, अगर आप प्री आरएमओ के लिए आरएमओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन मुझसे ना बने, ऐसा हो ही ना। आपके अंदर ये फीलिंग होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा ही बनेगा, मैं बना लूंगा। और आप क्वेश्चन में घुसने की आदत हो, आप पूरा डीप चले गए क्वेश्चन में, सोच रहे हैं, बहुत तरीके से सोच रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को,
अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है मैथ्स में, गो फॉर प्री आरएमओ आरएमओ, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाइड। जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट है उसके लिए। आपको कुछ बुक्स आपको, जैसे प्री आरएमओ के लिए आप राजीव मनोचा की एक बुक आती है, इंडियन इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स, राजीव मनोचा करके एक बुक आती है मैथ्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो अगर आपको पैशन है तो, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी आज के पहले आरएमओ के लिए नहीं सुना, या जो लड़का जैसे आरएमओ के लिए क्या होता है 9th से स्टूडेंट प्रिपेयर करता रहता है जनरली, तो 9th 10th प्रिपेयर किया तो 11th तक उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो 9th में हो सकता है कि आरएमओ क्वालिफाई किया, इनमो मिस कर गया, तो वो 11th में जो है पक्का इनमो क्वालिफाई कर लेगा, या हो सकता है आईएमओ के लिए सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और प्री आरएमओ की जहां तक बात है, तो प्री आरएमओ आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप क्लास में सीरियस है, मैथ्स के क्लास में। हम लोग जितना भी पढ़ाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, आपको क्वेश्चंस में घुसने का आदत डेवलप करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस पर सोच रहे, भाग नहीं रहे, अरे ये मुझसे नहीं बनेगा, मैं सर से पूछ लूंगा। कोई क्वेश्चन देखा, नहीं 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 ये तो मेरे से नहीं होगा, अरे ये बहुत टफ है। इस टाइप का अगर आपका आदत है, ठीक है ना, इस टाइप का अगर आपके मन में इस टाइप के फीलिंग्स आते हैं क्वेश्चंस देख के, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको मैथ से प्यार हो जाना चाहिए, तब आप जो है आरएमओ वगैरह आराम से क्वालिफाई कर लें। Thank you, Priyanka, sir. That was very, very important advice. I hope students will have noted down. Sir has for class 11 you are now, so let's think of class 11 only. All the important chapters sir has mentioned and how to prepare for it. और ये बहुत अच्छा टिप था मैथ्स के लिए। You keep a notebook और A4 sheet in front of you. क्वेश्चन को पहले देख के सोचे और उसके बाद अटेम्प्ट करें, ये आदत पड़ जाएगा तो आप आगे चल के 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। So this is very important advice sir has given। और सर ने ओलंपियाड्स, आईएनएमओ, पीआरएमओ के बारे में भी बोल चुके हैं, ये तो हम बार-बार एप्लीस कर रहे हैं कि सर एप्लीस किए थे। बिफोर आई गो टू आरएसटी सर विद फिजिक्स, आई वुड लाइक टू केमिस्ट्री में बाद में आ रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में है, तो अच्छा रहेगा कि पीके सर लास्ट में वो आंसर करें। पहले फिजिक्स कवर कर लेते हैं, बट उसके पहले मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा था। देखिए कोई पूछ रहा है एनआईटी में सीएस करने के लिए कितना कट ऑफ चाहिए, या आईआईएससी के लिए मुझे थोड़ा क्लास, आईएसआई के लिए थोड़ा क्लास एक्स्ट्रा। ये कोई ऐसे पॉपकॉर्न नहीं है कि 1-2 क्लास करा दिया तो आईएसआई के लिए हो जाएगा, या क्या करने से आईआईएससी में ही मिलेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश अ मिनिमलिस्ट अप्रोच, कि मुझे इतना करने के लिए कितना चाहिए। डोंट गो इनटू दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग। 11 में पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन योर जर्नी, 2 साल का लंबा टेस्ट मैच है। गो टू योर बेसिक्स, इतना अच्छा पढ़ाई करें कि आपका रैंक इतना अच्छा हो कि यू बिकम द चूजर, कि आपका रैंक इतना हाई हो कि आपको आईएसआई में जाना है कि आईएसआई। बिकॉज सी जो अलग एग्जाम भी है, आईएसआई की बात कोई केबीटी में भी पूछा है, वो तो हमारे एजेंडा में है। बेसिकली आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, और अगर उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका ठीक रहेगा तो उसका आगे का लेवल में आप चले जाएंगे। हम जेई मेन का भी, जेई एडवांस का भी नॉलेज देंगे, उसके बाद तो आपका कोई भी रैंक आ जाएगा। तो देन यू डोंट हैव टू डू दिस मिनिमलिस्ट अप्रोच। तो आई विल टेल स्टूडेंट्स अगेन, प्लीज डोंट गो टू दिस बाय, एंड डेफिनेटली नॉट नाउ। 12th के एंड में आके एग्जाम के 1-2 महीने पहले अगर आपको गैप्स है तब आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी से आप ये इतना माइक्रो मत सोचो। एक्चुअली सोचो कि हाउ टू मेक माई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स गुड, so that I get a very good ranking and then I can choose anything I want. That should be the right idea. So anyway, I will now come to Radheshyam Thakur sir, RST sir, physics का question एक तो आ रहा था। बच्चे पूछ रहे हैं how to not get distracted. If you like the subject, why should you get distracted? मोबाइल का एडिक्शन तो नहीं है, बिकॉज मोबाइल अभी चाहिए, बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, बट जो एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको अनइंस्टॉल करें। यू हैव टू हैव व्हाट्सएप, यू हैव टू हैव, और व्हाट्सएप से भी नहीं चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, MS Teams चाहिए, जूम चाहिए शायद, लेकिन आपको तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल एडिक्शन आपका इसलिए हो रहा है कि यू आर गेटिंग डेविएशन। RST सर स्टार्टिंग में हॉबीज़ की बात की थी, रिपीट में आई वांट टू ऐड वन थिंग टू सर्च पॉइंट, डोंट हैव अ डिजिटल हॉबी। वीडियो गेम खेलना या टीवी देखना, दैट कैन नॉट बी करेक्ट हॉबी। थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज, स्किपिंग, गार्डनिंग, थोड़ा कुकिंग, कुछ ऐसा करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज हो, तो ये बेटर रहेगा आपको। एनीवे, वी कम बैक टू दिस। RST सर, तो हम फिजिक्स के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग हाउ टू मास्टर फिजिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चे इंजीनियर बनने में जा रहे हैं तो फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट KVPY, KVPY प्रिपरेशन के लिए हम जो करते हैं और क्या बच्चों को करना चाहिए। ओवर टू RST सर। पर्टिकुलरली इन फिजिक्स, देखिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना बेस होता है। जैसे मैथ का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है।
तो फिजिक्स में ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जैसे अभी एक ही है, फिजिक्स सीखना बड़ा टफ है, बट इसको भूलना भी बड़ा टफ है। अगर आप एक बार सीख गए तो इसको भूल नहीं सकते, बहुत टाइम लगता है इसको भूलने में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है पूरा। अभी हम लोग प्रॉब्लम कहाँ पे करते हैं, क्यों फिजिक्स को टफ बना देते हैं या हो जाता है टफ, क्योंकि हम लोग बेसिक से नहीं जाते। जब आप एक तो सबसे पहला बात फिजिक्स में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं बोलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, कोई बोलेगा रोटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रू, बट रोटेशन आप तब तक नहीं कर सकते। रोटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पूछ जाते हैं, ये बात मैं बोलता हूँ और है भी ऐसा। लेकिन इफ यू सी, if you don't know laws of motion, if you don't know work energy power, if you don't know collision, you cannot do rotation। सवाल ही नहीं है इसका। तो हर टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा पॉइंट है कि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले आप आते हैं कैनेमेटिक्स से, फिर लॉज ऑफ मोशन, तो फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर आपका कोलिजन, फिर रोटेशन। अगर जेई एडवांस का बात करें हम लोग तो लॉज ऑफ मोशन तक तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। एडवांस में लॉज ऑफ मोशन तो रेयरली देखिएगा 4 साल 5 साल पे एक क्वेश्चन आता है। अभी तक तो हम लोग पिछले 3 महीना से अभी तक लॉज ऑफ मोशन पे ही पहुंचे, तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक का काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन पता नहीं है, यू कैन नॉट डू वर्क एनर्जी पावर, यू कैन नॉट डू कोलिजन और यू कैन नॉट डू रोटेशन। फिजिक्स में ग्राफ जो है ये बढ़ता जाता है। आप अगर ग्राफ पढ़े, डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो ये ऐसे जाता है, मेरा वीडियो में देख सकते हैं, ये ऐसे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, रोटेशन तक बढ़ता ही जाता है और देन इट डिक्रीजेस, और फिर 11th में वो डिक्रीज ही करते जाता है। तो इसमें पेशेंस का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को इसलिए बताया कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव पेशेंस। कि जैसे जैसे अभी आप 10th से 11th में आए, थोड़ा सा शुरुआत में यूनिट डायमेंशन हुआ, थोड़ा ठीक ठाक लगा, फिर उसके बाद जो ग्रेविटिक्स आया थोड़ा टफ हुआ, लॉज ऑफ मोशन उससे टफ, वर्क एनर्जी पावर, ये होता रहेगा। इसके साथ हम लोगों को चलना है। अब हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहला बात कि पढ़ने का तरीका, इंपॉर्टेंट टॉपिक का जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कोलिजन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, that SHM is the most important topic of the 11th part, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, बट अभी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग मिस करते हैं कि क्वेश्चंस, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं हम लोग के। इसमें आप देखेंगे पर्टिकुलरली इन फिजिक्स, दे से कि स्टूडेंट्स के जैसे जाएंगे, अच्छा IIT का प्रिपरेशन करना है तो एरोडोम करना है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम एरोडोम, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए। सबसे पहले मैं अगर आपको पॉइंट बताऊं तो आप सबसे पहले कॉपी पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए, देन सेक्शन F सॉल्व करिए। सेक्शन में भी डिमार्केशन हो सकता है, सेक्शन F सॉल्व करिए, फिर A पे आइए, क्योंकि A में अभी थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस बार पिछले साल से डाले गए हैं, तो A पे आइए, B करिए, C करिए। इस तरह से आप अगर करेंगे और फिर अगर ये सारे हो जाएं, इसके बाद ही कोई आप बुक अगला ट्राई करिए। डेफिनेटली वी कैन डू SC वर्मा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, हम लोग कर सकते हैं। बट आप अगर अपना मटेरियल पूरा 100% सॉल्व नहीं किए हैं तो फिर आप SC वर्मा मत करिए, दैट इज माय सजेशन। सो अभी अगर आप कॉपी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज में मत जाइए, पहले कॉपी पढ़िए फिर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज में डायरेक्टली जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे स्टार्ट करना है। फिजिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो कॉपी पढ़िए, फिर एक्सरसाइज किया, फिर डिफरेंट असाइन, जब आप ये सब करेंगे उसके बाद SC वर्मा करिए। दैट इज अ वेरी गुड बुक कि आप जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कंसेप्चुअल पॉइंट्स डेवलप करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप अगर इतना कर लिए हैं देन वी कैन ट्राई फॉर द अदर बुक, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मैं जैसे बताया कि डोंट गो फर्स्ट टू द एरोडोम, इट इज द लास्ट थिंग टू डू। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप अपने दोस्त को देखते हैं कहीं पे कोई स्कूल में है या कहीं पे है, वो एक क्वेश्चन लेके दे दिया आपको, नेट से निकाल के कहीं से दे दिया, उस तरह से प्रिपरेशन फिजिक्स का आप नहीं कर सकते। अगर आप फिजिक्स में ऐसे इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो हमेशा ही आपका प्रॉब्लम बना रहेगा। सो इट इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट,
कितने क्वेश्चंस आप हर दिन सॉल्व करते हैं ये कम मैटर करता है, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा मैटर करता है। इसमें इस बात का कि उससे आप कितना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ये इम्पोर्टेंट है। दैट इज फॉर द फिजिक्स। एंड देन सर ने बोला, तो फिजिक्स का यही पॉइंट है जो मैंने बता दिया। तो आप जनरली जब भी आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका सिलेबस होगा वो, हाँ अभी जैसे जो भी आप बुक का नाम बोल रहे हैं, मटरो बोल रहे हैं या रोडो बोल रहे हैं, जो भी बुक बोल रहे हैं, ये सब लास्ट का बुक है। अगर आप करना चाहते हैं वी कैन डू, डेफिनेटली करना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। बट वो देखिए, हम लोग को तो दोनों चीज़ देखना है, मेंस भी देखना है और एडवांस भी देखना है। अगर मान लीजिए एडवांस में तभी जाएंगे ना जब मेंस में अच्छा करेंगे आप। तो जो पहले जो आईआईटी को टफ क्या बनाता है, एडवांस को क्या टफ बनाता है, इट्स वैरायटी मेक्स इट टफ। ऐसा नहीं है कि लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस है, उसका वैरायटी जो है उसको टफ बनाता है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि दो तीन चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ मिले रहते हैं, इसलिए वो टफ है। एक पर्टिकुलर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, रोटेशन का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। रोटेशन में अगर पूछना है तो उसमें कोलिजन भी होगा, कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी पावर होगा, तो ये चीज उसको टफ बनाता है। तो ये जब तक आप इंडिविजुअली हर चैप्टर पे मास्टर नहीं होते हैं, तब तक आप एक चैप्टर को करके और उसमें खाली टफ क्वेश्चंस करके आप इस सब्जेक्ट को सीख नहीं सकते। और एक बात और, सॉल्यूशन जनरली मिलते हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप अगर फिजिक्स में सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप सुसाइड कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए ट्रू हो सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ, केमिस्ट्री में मैथ में उनका मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया है, बट फिजिक्स में अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं खुद से तो आप सुसाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। दैट लास्ट टाइम पे अगर मान लीजिए एग्जाम में 1 महीना देरी है, उसका बात अलग है, उस टाइम का बात अलग है, बट अब 2 साल के लिए तो अभी आप बिल्कुल ही कोई भी सॉल्यूशन मत देखिए, टीचर से पूछिए, क्योंकि उसके साथ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपको सीखना है, वो कहाँ कैसे अप्लाई करना है। अभी कोई पूछ रहे थे कि फिजिक्स में बहुत सारे जो फॉर्मूला आते हैं जो बताए जाते हैं, वो सब कैसे याद रखें। अलग से शॉर्टकट अप्लाई करने का इंजीनियरिंग एग्जाम में कोई जरूरत नहीं। वो जो आपको फॉर्मूला जो दिख रहा है वो सर ने जो अलग से बताया है, इफ यू प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू। अभी टाइम इसका नहीं है कि आप फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान दें, आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो डिटेल में करने का ट्राई करिए, जितना ज्यादा डिटेल में हो सके, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। और लास्ट में जाकर के डेफिनेटली जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को सॉल्व करना है। और जो 30 इयर्स के क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी को सॉल्व करना है, उसमें सब्जेक्टिव करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए सर लोग बोल रहे थे कि जो अगर कोई ओलंपियाड का प्रिपरेशन करता है तो उसको आईआईटी में कैसे हेल्प मिलता है, इसी तरह से। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सॉल्व करेगा तो फिजिक्स में इन पर्टिकुलर उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो फिजिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना भी अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ाता है। और बाकी फिर आया केवीपीवाई में। केवीपीवाई डेफिनेटली आपको हम लोग को सभी एक्सपीरियंस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और एक आप उस लेवल पे आईआईटी में जाने से पहले आप उस तरह के स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हैं। एक इन्वायरमेंट आपको देता है कि आप उस तरह की चीज़ों में जा सके। और एक अगर मान लीजिए आईएससी का पहले केवीपीवाई में हो जाता है तो एक चीज़ सिक्योर रहता है मौका कि ठीक है आईएससी को कम से कम जा सकते हैं, वहाँ के इंजीनियरिंग में तो हो ही सकता है, इसलिए थोड़ा प्रेशर भी कम कर देता है। तो इसलिए आईआईटी के लिए डेफिनेटली इसके लिए ट्राई ज़्यादा। Thank you so much, ISP sir. Thank you so much, sir. And I hope students have noted down. Sir has pointed out the important topics of physics, mainly in class 11 now. सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स इज एक्सट्रीमली कंसेप्चुअल एंड प्लीज गेट योर कंसेप्ट्स राइट। इसके लिए बार बार पढ़ें। और देयर इज नथिंग टू बी रिमेंबर्ड इवन इफ इट्स फॉर्मूलाज, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लासेस प्रॉपर्ली, इफ यू आर फॉलोइंग योर नोट्स, इफ यू आर देन व्हेन यू स्टार्ट विद द नोट्स एंड देन फॉलो द आकाश मटेरियल, इट इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइन। डोंट गो फॉर टू मेनी बुक्स, चाहे यूरोप हो चाहे कोई भी एडवांस बुक हो। इफ यू आर ट्राइंग टू पाइल योरसेल्फ, दैट्स रॉन्ग। एक स्टूडेंट लिख रहा था, मैं अपना नोट बनाता हूँ और किसी का भी नोट्स देख के मैं कॉपी करके जाता हूँ। You know, there is a theme in studies called quality before quantity. आपके पास बहुत बुक्स है, बहुत नोट्स है, बट आप खुद नहीं पढ़ते हो, ये गलत है। आपका नोट्स खुद बनाइए। वो नोट्स जब आप बनाते हो तो आपका बने कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसी में आता है। और जब आपको मिस होता है क्लास में तो आईटी का वीडियोस भी आपके लिए है,
ये आपको करना पड़ेगा। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई बच्चा भी लिख रहा है तभी कम टाइम में ज़्यादा क्या पढ़े, कैसे करने से जल्दी हो जाएगा, हर चैप्टर में जितना जितना क्वेश्चन करने से पूरा। डोंट माइंड स्टूडेंट्स, आई टेल यू, कोई जादू की छिपड़ी कोई मैजिक नहीं है। इट इज़ मोर लाइक योगा और जिम, देयर इज अ statistical a solid process of months. So that is why we are again specify go to the basics. स्टडी प्लान के बाद आरएसटी सर, बीआर के साथ तीनों कर चुके हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अ ब्यूटीफुल थिंग वी डू इन आकाश इज गिव यू अ टेस्ट प्लानर। दिस टेस्ट प्लानर बिकम्स योर टारगेट। आपको मालूम है नेक्स्ट 4 चैप्टर में क्या टेस्ट में क्या क्या चैप्टर में, उसी को टारगेट बनाइए। फिर आप अपने एपेटाइट पे देखिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए आपको। और पढ़ने का जो तरीका है ना, ये कोई पूछ रहा है कि 10 से 11 में बस 10 तक जंप हो, दैट्स नॉर्मल। 8 to 9, 9 to 10 जो हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं क्लासिकल जंप, 10 to 11 is a quantum jump, लेकिन अलग ही एनर्जी लेवल पे आते हैं। दैट्स ओके, दैट्स ट्रू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हाउएवर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप घर चले जाए, पढ़ाई करना है एकदम डिटेल नोट्स बना के पूरा चैप्टर पढ़ के फिर मैं क्वेश्चन अटेंड करूँगा 3-4 दिन बाद, वो गलत होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सर लोग भी बोल चुके हैं, डेली प्रैक्टिस करें। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू गेट माई मिनिमम स्कोर, you please go to the basics and get your basics right, get your concepts clear. Daily minimum 20-25 questions per subject कम करें, वो सही रहेगा। और क्योंकि आईआईटी का एग्जाम जेई एक साथ तीनों सब्जेक्ट होता है, 6 घंटा पढ़ो 8 घंटा पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट को टच करनी चाहिए रोज। कम या ज़्यादा आप डिसाइड कीजिए कौन सा आपके लिए ईजी है, कौन सा टफ है। और 11 के स्टूडेंट 11 की तरह छोड़िए, बाहर का चीज़ अपने अंदर देखिए। कोई पूछ रहे हैं कि आई डोंट नो स्टूडेंट और पेरेंट की एजुकेशन पॉलिसी हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा। पहले तो वो लगा बना नहीं अभी तक, जब बनेगा तब देखा जाएगा क्या इम्पैक्ट होता है सिलेबस में, एवरीथिंग। आई डोंट थिंक इम्पैक्ट यू। द ओनली इम्पैक्ट दैट विल हैपन इफ यू थिंक अबाउट दोज आउटसाइड थिंग्स, इट स्पॉइल योर ओन टाइम। तो प्लीज डोंट, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स। समबडी इज आस्किंग क्या मैं सिर्फ जेई मेन करके, अभी ऐसे क्यों सोच रहे, जेई मेन ही अभी कीजिए। वंस यू कवर दैट यू हैव टाइम फॉर जेई एडवांस, so go one step at a time. This is my advice to all of you. You are asking questions, that is good, but don't ask questions which is not relevant to you. इससे तो आप अपना डाइवर्शन होता है। एबीपीवाई का सर बोले आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इट्स अ बिट एडवांस, यस सम स्टूडेंट्स हैव रिटन दैट आल्सो। ओलंपियाड का भी बेनिफिट जो है सर बोले हैं, बट प्लीज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न फ्रॉम आरएसटी सर, डोंट गो फॉर मगिंग अप क्वेश्चंस एट ऑल। ये एकदम सुसाइडल होगा। हाँ, सेकंड थिंग सर बोले, डोंट लुक एट सॉल्यूशंस, इन सेम पॉइंट, क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी। क्वेश्चंस आपको मिला, आप कर पाए कि नहीं कर पाए, कहीं से ढूंढ ढूंढ के आपने नोटबुक पे सोल्यूशन बना लिया और वो सोल्यूशन देख के गए। एग्जाम में तो एक नया न्यूमेरिकल होगा, एक नया ट्विस्ट होगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व, मेक 10 मिस्टेक्स, कम टू द डाउट विद दैट मिस्टेक इन प्रॉब्लम। दैट सर विल से वेरी लोकली, नॉट व्हाट मिस्टेक यू मेड, कितना आंसर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ गलत हुआ। दैट गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। तो दिस इज माई एडवाइस। नाउ आई कम टू प्रशांत कुमार सर। सर केमिस्ट्री को लेके बच्चे, मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री मेन प्रॉब्लम है, ये मुझे पता नहीं था, योर सब्जेक्ट। कोई लिखा है कि हाउ टू लर्न केमिस्ट्री विदाउट मांगूंगा, सो इफ यू कैन काइंडली एडवाइस। सो केमिस्ट्री का एडवाइस आपसे मैं चाहूँगा सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक्स एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। जैसे कि सभी लोगों ने जो सारी बातें कही मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, तो अल्टीमेटली बच्चे आप लोग को ये समझ लेना पड़ेगा कि आप अगर जेई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि हम कम समय में ज़्यादा कैसे कर लें, ये कर लें, थोड़ा पढ़ें सब कुछ हो जाए, तो कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन डेप्थ स्टडी करना ही पड़ेगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी मैं ऐसा एक चैट में देख रहा था कि एक मदर ने कहा कि थर्सडे फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है, तो मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरा तो एक ही चीज़ कहना है कि बच्चों को पढ़ने के अलावा तो अभी कोई काम है नहीं फॉर दिस 2 years। और ऑब्वियसली बात है कि पढ़ने के लिए ही तो अभी उनका काम है, इसलिए उनको टाइम अगर कंज्यूम हो रहा है तो कंज्यूम नहीं हो रहा है, उसको ऐसे मत सोचिए। आप ये सोचिए कि उसका टाइम यूज़ हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्लास अगर होता है, बच्चे क्लास अगर पढ़ते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कंज्यूम हो रहा है टाइम, लेकिन एक्चुअली तो सिर्फ टाइम यूज़ हो रहा है उनके पढ़ने में, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। दूसरी बात, सभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये कंप्लेन मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उठा कर आप देखो नजर, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास 24 आवर्स में उतने ही घंटे हैं जितने घंटे आपके पास हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास 24 आवर्स में जो है 30 आवर्स है और आपके पास 24 आवर्स में 20 आवर्स है। इसलिए टाइम का कंप्लेन मत कीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है, उतने ही टाइम है सबके पास और आपको उतने ही टाइम में आपको काम करना है। अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट के,
तो बेसिकली जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इट इज बेसिकली अ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे अभी तक। तो केमिस्ट्री इज बेसिकली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। कैसे? तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और मैथमेटिक्स में तो अब कैलकुलेशन है, और आपका जो केमिस्ट्री है उसमें दोनों चीज़ आएगा। तो केमिस्ट्री को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जो वर्ड आया फिजिक्स से, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली यू आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दूसरा पार्ट आया आपका इनऑर्गेनिक, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज़ मोर और लेस थ्योरेटिकल, और जो ऑर्गेनिक भी आपका मोर और लेस थ्योरेटिकल है। लेकिन तीनों चीज़ को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। फिजिकल को अलग तरीके से पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक को अलग तरीके से पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक को अलग तरीके से पढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री को मगअप करना पड़ता है, तो ऐसा मैं जब बच्चों से क्वेश्चन पूछूं कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने रटी नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी चीज़ मुझे बता नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा का नाम क्या है, तो ये भी आपने बचपन से रटा ही है। किसी ने आपको ये समझाया नहीं है कि आपके पापा का नाम ऐसा क्यों है। उनको बोला गया कि आपके पापा का नाम मिस्टर एक्स है, आप बचपन से रटते आए। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना मगअप वाला चीज, मगअप नहीं है। बेसिकली वो चीज़ों को समझ करके लर्न करने के कंसेप्ट को हम लोग मगअप बोलते हैं। तो आप लर्न करते हो, याद करते हो सभी चीज़ों को, लेकिन वही कंसेप्ट के थ्रू लर्न करने से क्या होती है कि चीज़ें याद होती हैं और लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करते हो, उसमें जो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो जैसे ठाकुर सर ने भी कहा, मैं भी यही कहूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स, इसको अगर अच्छे से अगर आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, तो दैट कैन बी डन ओनली बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स। आप जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना आपका फंडामेंटल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका थ्योरी तो उसमें आ ही रहा है, बिकॉज जो भी न्यूमेरिकल्स होगा थ्योरी बेस्ड होगा, उसमें आपका थ्योरी आ ही रहा है, तो आपको थ्योरी भी समझ में आ रही है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला क्या होगा आपको याद हो जाएगा। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल के थ्रू ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। दूसरी बात, अगर इनऑर्गेनिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं है बच्चों की इनऑर्गेनिक जो है बहुत रटने का चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनऑर्गेनिक में देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो, कि आपको जानना है कि हाँ ऐसा क्यों होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो इंटरेस्टिंग भी है, जिसके पीछे लॉजिक है, जिसके पीछे आपका रीजनिंग है। जैसे इनऑर्गेनिक अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया या पीरियोडिक टेबल हो गया, तो भी केमिकल बॉन्डिंग कुछ लोग का चल रहा होगा, कुछ लोग का खत्म हो गया होगा, उसमें ही बहुत सारी चीज़ें, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। और अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छे से कर लिया है, तो मैं आपको लिख करके देता हूँ कि इनऑर्गेनिक में आपको 25% आपका प्रॉब्लम जो है रेक्टिफाई हो गया। इसलिए आपको इनऑर्गेनिक के लिए उतना टेंशन नहीं करना है इफ़ यू आर हैविंग कमांड ऑन केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ऑर्गेनिक जब आपका आएगा आफ्टर इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री में भी अगर हम बात करें फिजिकल इनऑर्गेनिक की, तो वो बिल्कुल हट जाएगा अगर ऑर्गेनिक में जब आप आएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा कि मीथेन विद क्लोरीन इज गिविंग CH3Cl+Hc, या आपने कॉल्बेज या भी जो भी 2-4 रिएक्शंस आपने देखे, उसमें क्या था, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। बट अभी के समय में क्या होगा कि जब हम आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, जब आपको हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, तो दोनों केस में हम बताएंगे कि कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, व्हाट इज द पाथवे ऑफ द रिएक्शन। इसलिए इफ यू नो द मैकेनिज्म, इन दैट केस यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट। तो उसमें आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, कौन सबस्ट्रेट क्वांटिटी से जो भी है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पाथवे क्या होगा। और अगर आपको रिएक्शन का पाथवे अगर पता चल गया कि रिएक्शन किस स्टाइल में रिएक्ट करते हैं, तो आप प्रोडक्ट बना दोगे आराम से। इसलिए आप ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि बच्चे बोलते हैं कि केमिस्ट्री अच्छा नहीं है या फिजिक्स अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे साइंस और फिर उसके बाद आ जाओगे आप आर्ट्स में, तो आप आर्ट्स को रटने वाला चीज़ है, साइंस को भी आप बोलोगे रटने वाला चीज़, दोनों चीज़ नहीं हो सकती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब साइंस में जब हम आते हैं, तो बेसिकली आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो आपको कैसे इंटरेस्टिंग बना करके उसको पढ़ा रहा है, कैसे आप में इंटरेस्ट वो डेवलप कर रहा है। अगर आपके टीचर ने अगर आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं कर पाया, इसकी वजह से आपको लगता है कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या मैं इसमें कम हूँ, बट आई कैन एश्योर कि आप आकाश में आए हो, यू आर इन अ वेरी सेफ हैंड ऑफ आकाश, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं दे आर सुपर, दे आर ऑसम। इससे जब वो पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप देखना कि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और ये मैं आपको कह सकता हूँ आराम से कि केमिस्ट्री में भी आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा आफ्टर 2 इयर्स। आप केमिस्ट्री भी उतना ही अच्छा करोगे जितना फिजिक्स करोगे, जितना आप मैथमेटिक्स करोगे। यहाँ के टीचर इस तरीके से होते हैं या इस तरीके से उनको बताया जाता है, पढ़ाते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं तो ये हम लोग बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। हम सीधे नहीं कहते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन और आप इसको रखो। इसलिए वन डे आप देखना कि आपके भी ये जो कंसर्न है या जितना भी आपका कंप्लेन है केमिस्ट्री से, वो आप देखना 2 साल के बाद। एंड माइंड वन थिंग, केमिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स डोंट माइंड सर, फिजिक्स जो है वो लेंदी है, लेकिन केमिस्ट्री क्या है, स्कोरिंग। फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था मेरे को, भी फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, सबसे अच्छा मुझे फिजिक्स लगता था, लेकिन सबसे कम स्कोर मुझे फिजिक्स मिलता, क्योंकि जिसमें ज़्यादा अच्छा होता है ना उसमें ज़्यादा लोग सोच लेता है, इसलिए क्या होता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन केमिस्ट्री क्या है, बहुत स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आप इनऑर्गेनिक में आए, इनऑर्गेनिक में A+B इज गिविंग C&D, बस ये आपको पता होना चाहिए C&D देता है। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा अमलगमेशन है, या मैथ में भी क्या है, बहुत ज़्यादा अमलगमेशन है। देखिए केमिस्ट्री में क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दूसरी बात क्या है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अगर आप जाओगे तो कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जाओगे तो कैलकुलेशन का चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कैलकुलेशन है ही नहीं। जहाँ कैलकुलेशन नहीं वहाँ तो ऑब्वियसली बात टाइम भी बच गया और आपका एरर होने का चांस भी चला गया। इससे अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो यू शुड बी ओके इन केमिस्ट्री, और अगर आप अच्छा रैंक लेना चाहते हो तो इन दैट केस यू शुड बी गुड इन केमिस्ट्री। इसलिए मैं कहूँगा कि आप टेंशन मत कीजिए। हाँ, बच्चे ये जरूर उनको लगता है कि जब वो 10 से जब 11th में आते हैं तो उनको बहुत एक बड़ा जंप मिलता है, बट मैं ये बच्चों से कहूँगा कि आप किसी तरीके से 4 और 5 मंथ्स का टाइम निकालो। हम जानते हैं ये स्ट्रेस का टाइम है और सभी बच्चों को स्ट्रेस लग रहा है कि कैसे करेंगे, पहले इतना कम पढ़ते थे, अब इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, नहीं हो पा रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि आप बस अपना कंसंट्रेट करके बस 4-5 महीने आप निकालो, और अगर ये 4-5 मंथ्स अगर निकल गए तो बाकी जो है, जैसे ठाकुर सर ने कहा कि पहले ही बढ़ता है ऐसे फिर ऐसे घटेगा, ये जब आप 12th की तरफ जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेबस है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, आप 11th को बहुत फोकस करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि 11th इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल द 12 चैप्टर्स या फॉर द कॉम्पिटिशन। जैसे अगर हम 12th में केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो दैट इज बेसिकली द अमलगमेशन ऑफ द few chapters of the 11th, like ionic equilibrium, thermodynamics, gaseous state। सरफेस में जाएंगे तो उसमें gaseous state का भी बात आएगा। अगर हम लोग जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात आएगा। मतलब कहने का कि 12th के मैक्सिमम चैप्टर में 11th का यूज आएगा, इसलिए आप 11th को काफ़ी अच्छे से करना। और अगर आपने 11th अच्छे से कर लिया तो 12th में आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। 12th आपका हंसते हंसते खिलते खिलते निकल जाएगा इफ़ यू हैव डन वेरी गुड इन 11th। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप 11th में जितना लोड ले सकते हो ले लो, बस 11th में लोड लो, 12th में आपको कोई लोड लेने का दरकार नहीं पड़ेगा। और 11th अच्छे से निकल गया तो 12th में तो अच्छा होना ही होना है। और ये 2 साल का बात है बच्चों, बस किसी तरीके से हिम्मत करके और अपना फोकस करके, बिना किसी इधर उधर की बातों को ध्यान में रख करके बस ये 2 साल निकालो, और अभी का 4-5 महीना निकाल लोगे तो आगे सब काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो, जैसे अगर मैं सिंपल सा बात करूं, जैसे रमजान का महीना होता है, कुछ बच्चे हमारे मुस्लिम्स भी होंगे और हिंदू बच्चे भी सब चीज़ों को जानते हैं। जैसे रमजान का महीना होता है, बहुत पावन महीना होता है, उसमें 1 महीने का फास्ट रखना होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो 4 और 5 डेज का जो फास्टिंग इनिशियल का होता है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देता है, नहीं हो पाता है। लेकिन वही अगर वो लोग अगर 4 या 5 डेज या 7 डेज अगर फास्टिंग कर ले जाते हैं तो फिर यूज टू हो जाते हैं कि नहीं, फिर उनको जो है पूरे महीने पता नहीं चलता है कि रमजान है और मैं फास्टिंग हूँ। यही आपके साथ भी है। तो 2 साल का बात है, लेकिन ये 4-5 महीने अगर आपने निकाल लिया तो बाकी का टाइम आपको फील नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल मत सोचो कि आपको जो है पढ़ते ही रहना है, नहीं, बस 5-6 महीना पढ़ लो, फिर बाकी आपका टाइम नीचे की तरफ आ जाएगा। यस, थैंक यू सो मच पीके सर। सबसे पहले तो आपने बच्चों का केमिस्ट्री का जो एक
फियर था वो दूर कर दिए। सर बहुत अच्छी बात बोली कि वाई यू कॉल इट मागा, यू ओनली कॉल इट मागा व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो मैं तो एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, सर फादर की नाम बताएं, कोई मूवी अगर बच्चे देख के आते हैं तो पूरा स्टोरी बोल देते हैं, उसका एनालिसिस बोल देते हैं, कोई तो रट्टा नहीं मारते। तो स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट्स, यू विल बी एबल टू डू दैट इज द फर्स्ट मैसेज सर गेव। एंड सर ने बहुत डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में बताए। और 11 आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, ये इसमें थोड़ा मेहनत करें। हम पहले भी बोल चुके हैं कि थोड़ा पहले टफ लगेगा, संगे रमजान का एग्जाम्पल वेरी राइट, धीरे धीरे आपका आदत बनता जाएगा। आप सोच के देखिए, जब आप क्लास 6-7 में आए थे, जब अचानक साइंस ब्रांच आउट हो गया था, आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा। आज के दिन में वो क्या है, चाइल्ड्स प्ले लगता है। आज से 1 साल के अंदर आपका वो जर्नी पूरा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस चैट में आया है, मैं क्विकली टचअप कर देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, जब ऑलमोस्ट एंडिंग टाइम। रनिंग नोट्स तो लेना चाहिए, पीडीएफ बाद में बनाना नहीं, बिकॉज व्हेन फैकल्टी इज टीचिंग व्हेन यू आर राइटिंग वो भी लर्निंग होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, फैकल्टी का डिजिटाइजर और उसका जो बोर्ड वर्क है दैट इज बी सेव्ड एंड पुट इन द फोल्डर ऑफ एमएसपीज। तो मैं एक सजेशन बच्चों को दूंगा, अगर फैकल्टी एक्चुअली थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं और आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग वर्बल जो बोला जा रहा है उसको नोट करें। जनरली फैकल्टीज, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज विल बी राइटिंग एंड डिक्टेटिंग बोर्ड, बट अगर फैकल्टी बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर रहे हैं और पूरा लिख भी रहे हैं, तो लिखने का पार्ट अगर आपको थोड़ा छूट भी गया तो उसका एक बैकअप आपका बोर्ड वर्क का फोल्डर में मिल जाएगा। तो मैं कुछ बोलूँ सर इस पॉइंट पे? यस सर प्लीज सर। एक्चुअली बच्चों अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी तो क्लास में नहीं है तो आप हमको नहीं देख पा रहे, हम भी आपको ठीक से नहीं देख पाते। तो अभी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो हर चीज़ को अपने नोट्स में लिख रहे हैं, है ना। 99% जो भी वो बोलते हैं वो आप लोग भी फील किए होंगे, वो अपने नोट्स में लिखते हैं। तो अभी मेरा ये सजेशन है कि जब टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लग रहा है या जो दिख रहा है या जो समझ में आ रहा है उसको आप हल्के से नोट करो। आप पूरा नोट्स को कॉपी मत करो। और जब हम लोग जब इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे टीम्स में और टेलीग्राम में, तो जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए जाना तब इस नोट्स को ओपन करके उसको समझ करके लिखो। इससे क्या होगा कि आपका जो है सेल्फ स्टडी होगा। और मैं कुछ और क्वेश्चन देख रहा हूँ, सर आप भी आंसर कर सकते हैं। जेई एडवांस के लिए कट ऑफ स्कोर पूछ रहे हैं। आई थिंक दैट नंबर इज अबाउट 2,24,000 वाज लास्ट ईयर। तो ये कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जेई एडवांस के लिए कितना स्कोर करना होगा। 126 अबव लेके आना चाहिए, मतलब 130 सेफ है। सेफ है, तो देयर इज नो स्पेसिफिक कट ऑफ द नंबर्स। क्योंकि अब तो आईआईटी भी बहुत सारे हो गए, 25-30 आईआईटी हो गए, 130 में हो जाता है। बेसिकली हम जो देखें 2 लाख था, फिर 2,20,000 हुआ। लास्ट ईयर वो 2,24,000 था, तो थोड़ा तो बढ़ेगा नहीं तो सब, तो स्कोर वैसे ही रहता है। तो अगेन डोंट थिंक मिनिमल। ऐसे भी 306 अगर एडवांस का अगर है तो उसमें 130-140 लाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल अगर बेसिक भी आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपका मार्क्स उतना आ जाएगा। बेसिक भी अच्छे से पढ़े, दर्जे से बोल रहे थे केमिस्ट्री का पास तो केमिस्ट्री कराता है, दैट थॉरली आई बिलीव दैट पास तो केमिस्ट्री कराता है। अगर आपको कोई स्कोर करने का 120 मार्क्स है मान लीजिए, केमिस्ट्री का 110-150 भी स्कोर करता है। सभी टॉपर तो सारे सब्जेक्ट में करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, देयर इज डिफरेंस। टॉपर सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, मान लीजिए 110 सभी सब्जेक्ट में, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स भी केमिस्ट्री में 120 में कोई ऐसा होता है जो 110 स्कोर करता है। 30 क्वेश्चन बनाने में मुझे 5 घंटे लग जाए, इट इज पॉसिबल। स्टार्टिंग में एवरेज स्टूडेंट्स को लग सकता है ये, बट फिर आफ्टर सम टाइम जब वो दूसरे चैप्टर्स में जाएंगे, धीरे धीरे जब उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो वो टाइम अपने आप रिड्यूस होगा और वो पाएंगे कि उनका स्पीड भी डेवलप हो गया है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी और अच्छा आ गया है। तो वो टाइम के साथ होता है। तो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए मेरे ख्याल से, अपने आप आपका डेवलप हो जाएगा। यार के सर कोई ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पूछा है और कोई बोल रहा है मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम एन इंजीनियर एंड लाइक टू आईआईटी, यू शुड एंजॉय मैथ्स। आरएसएस बार-बार बोले यू एंजॉय द जर्नी, बट ठीक है अगर पीआर के सर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो पहले केवल टिप्स देंगे और ट्रिगोनोमेट्री के लिए थोड़ा कोई पूछना चाहता है। सबसे पहले हर टॉपिक के बारे में हमको समझना होगा कि इस टॉपिक का क्या वेटेज है। जैसे मैथ्स में तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्री से और एडवांस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो उस तरह से आप सोचिए, आपको ऑलवेज ये सोचना है कि
कि मुझे ये सब टॉपिक क्यों करना है, इसका एक क्वेश्चन की बात है। यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना है। जब आप ये सोचेंगे ना कि मुझे ज्यादा स्कोर करना है, तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, मुझे पूरे सब्जेक्ट में इतना स्कोर चाहिए, मुझसे एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और जहां तक ट्रिगोनोमेट्री की बात है, तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को क्लासिफाई करेंगे, तो अभी आपने पहली बात तो ट्रिगोनोमेट्री आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा, वो ट्रिगोनोमेट्री 1 पढ़ा है, उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री 2 है। जब पूरा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगा, तो ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा उस टॉपिक के बारे में डिटेल, और फिर आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। मैं इन जनरल बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्री में क्लासिफाई कैसे किया गया है टॉपिक्स। सबसे पहला जो है ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। कुछ फार्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डोमेन रेंज रिलेटेड, मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड। अगर आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हैं, क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट क्या है ट्रिगोनोमेट्री में? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पक्का रहता है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर फोर्थ पार्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो जेईई एडवांस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री को 4 पार्ट में क्लासिफाई करके अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको वो बहुत ही आसान लगेगा और सिंपल लगेगा। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन क्विकली आ गया, ऑप्शन वेरिफिकेशन फॉर मैथ्स। यस, और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए। ये जान लीजिए, आपको अपना टाइम बचाना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डिस्कस भी करता हूँ कि आप देखिए, ये क्वेश्चन को मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे थे जो कभी नोट्स में कोई शॉर्ट, मतलब वहां पे बस ये है कि आपको सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम लोग वो सॉल्यूशन शो नहीं करते, हम लोग सिर्फ आंसर टिक करते हैं। अप्रोचेस सेम ही है। हमारा जो स्टडी अप्रोच है, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में भी, जो हम लोग का स्ट्रेटेजी रहता है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, बट वो हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, मेंटल कैलकुलेशन करके, कॉन्सेप्ट्स यूज करके। वहां पे आपको वो सारे स्टेप्स दिखाने हैं, बस यही डिफरेंस है। थोड़ा स्ट्रेटेजिक बने, दोनों एग्जामिनिंग बॉडीज का स्ट्रेटेजी से बोर्ड में स्टेप मार्किंग होगा। वहाँ पे आप अगर प्रॉब्लम आधा करके भी छोड़ देंगे तो राफ वर्क आपका देखा जाएगा, अगर बाजू में आपने किया। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड होगा, कोई आपका राफ वर्क नहीं देखेगा, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, आइदर यू गेट द पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके लिए आप थोड़ा वहाँ पे स्पीड बढ़ाएं। तो कॉन्सेप्ट सेम रखें, व्हाइल प्रैक्टिस इन योर पैकेजेस बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, सो डोंट ट्रांसप्लांट दिस ऑन दैट। तो ये थोड़ा स्मार्टनेस आप लोग सीख जाएंगे, अभी आप लोग 11 में बहुत जल्दी है। Anyway, thank you so much for listening patiently. Wish you all the best from my side, and thank you so much, faculties. After a long day of classes, you have made your